आजोदिया बुरु दो सांतार जातिया जीवी ओड़ा कना सानाम कोगे बन बाड़ाया आजोदिया बुरु सावते हड़पना धरम करम लाई लाकचार बंगा बुरु सानामा के जोड़ाव मेनाआ मेनखान हिसेलिए दिकु हपन और बांग सरकार आदिवासिया नवा पुण्यभूमि से पुनः थान दखल काते आदिवासी सांतार जात महर मेटाव रे कुरुमुटु कदा पारमेन 2000 साले खन लेताड़गे भारत जाकात माझी पारगाना महल और प्रकृति बांचाओ आदिवासी बचाओ मंच आदिवासी हड़ लागिद वनाधिकार आईन बांचाओ लागिद ठुड़ग पाम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट बिरुद्धे आंदोलन चलाव इदीदा नौकान अवस्था पारमेन 22 डिसेम्बर हिलो कोलकाता हाईकोर्ट 2003 वनाधिकार आईन एंडेल काते मिट्टांग राय एम अकादा हाईकोर्ट रिया मामला रेदो आजोदिया बुरु साव सावते दिसम जाकात सांताड़ हपन को हरावेना चलो एनखान नोआ राय लेते आजोदिया घाट पारगाना मानतान शामसुंदर मांडी चेद मेन कदा आंजम लगे बन আমাদেরকে এখানে উপস্থিত আছেন অযোধ্যা পাহাড়ের ঘাট পারগানা শ্যামসুন্দর মান্ডি। কালকে আমাদের পুরো প্রজেক্ট নিয়ে হাইকোর্ট মাননীয় হাইকোর্ট রায় ঘোষণা করেছে। তো এই রায় ঘোষণার পরে আমরা আমাদের যে ঘাট পারগানা বা শ্যামসুন্দর মান্ডি আছে তার প্রতিক্রিয়া আমরা জানতে চাই। পারগানা শ্যামসুন্দর মান্ডি কালকে যে রায় হয়েছে এই রায়ে আমাদের আদিবাসী সমাজ এতে সন্তুষ্ট নয়, কেননা আমরা দীর্ঘ কয়েক বছর লড়াইয়ের পরে কি পেলাম সেটা হলো 2006 সালের বনাধিকার আইন অনুযায়ী আমরা চেয়েছিলাম জল জঙ্গল জমি আদিবাসীদের অধিকার থাকবে। এটা সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। সেই রায়ের মোতাবেকে আজকে কালকে যেটা রায় হয়েছে ডিভিশন বেঞ্চে সেটাতে আদিবাসী সমাজ সন্তুষ্ট নয়। তাই আমরা বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিক্রিয়া আজকে বিভিন্ন জায়গায় কোথাও শোক মিছিল হচ্ছে, কোথাও বিভিন্নভাবে পালন হচ্ছে। আজকে আমরা অযোধ্যা পাহাড়ের উপরে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরছি, যেমন রাঙ্গা বাড়েলহর গ্রামে গেছিলাম, ওখানেও তারাও তাই করলো। আজকে আমি আছি এখানে কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো সেটা হবে। আমরা এই বার্তায় দিতে চাইছি কি যে ডিভিশন বেঞ্চের যে রায় হয়েছে সেই রায় আমরা সন্তুষ্ট নই। এই রায় যদি এইভাবে চলতে থাকে, ভারতীয় সংবিধানের 2006 সালের বনাধিকার শিকার আইন যদি লঙ্ঘন করা হয়, তাহলে গ্রাম সভার কথা বলা আছে। গ্রাম সভা গ্রাম সংসদ 2063 সালের সেই অনুযায়ী যদি রায়টা হয়, তাহলে আমরা মনে করব ভারতবর্ষের যে সমস্ত আদিবাসীরা আজকে পাহাড় জঙ্গল নদী নালায় আছে যেভাবে ছিল ওইভাবেই থাকবে। ভারতবর্ষের এই যে উন্নয়নমূলক কথা বলা হচ্ছে, নতুন ভারত গড়ার কথা বলা হচ্ছে, এইটা কিন্তু বাস্তবে রূপ হবে না যদি এই 2006 সালের বনাধিকার আইন অনুযায়ী এই শিকার আইন অনুযায়ী যদি আমরা ভারতবর্ষের আদিবাসীদের উন্নয়ন করতে না পারি, তাহলে স্বাধীনতার পরে যা ছিল আজকেও আধুনিক যুগেও সেই অবস্থায় থাকবে। সেই জন্য সারা ভারতবর্ষে যে সমস্ত আদিবাসী সংগঠন আছে, আমরা প্রয়োজনে আমরা দিল্লিতে আমাদের ST যে সেল আছে, SC/ST সেল, সেই সেলকে জানাবো তারা কি বলছেন, কি করব এই নিয়ে আমরা এখন চিন্তিত। তাই আমরা যে বাকি প্রোগ্রামগুলো আছে কীভাবে করব, আমাদের যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যারা আছেন ভারতীয় সংবিধানের রুল অনুযায়ী আমরা বিভিন্ন জায়গায় তার অবরোধ কী করতে হবে সেটা ওনারা নির্দেশ দেবেন। কাল পরশু থেকেই সেটা আমরা সারা ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবাংলা তথা অযোধ্যায় লাগু করার চেষ্টা করছি। আমার কথাগুলো শেষ করছি। নমস্কার। एक एक करके सब करते जाओ। जाने के थोड़ा इंतजार गोड्डा नागराह खना 12 किलोमीटर सागिन पाथरगामा सोर सापिन नई जापा रे बीड़ गाजार ते एसेद बाबूपुर रेन कोपिल राय युतुमान मिद हर बुसुब और मात ते तेयार माचा से माड़म सेट रे उद ए चासाकात खातिर एलेका रेन हट कोठेन युतुमे हरा कदा पारमेन 22 डिसेम्बर आया जानाम माहारे खबरिया कोई बाड़ा चकेत कुआ नुआ पांथा लेते सरकार ठेन जाहन गड़ो सफत बाय नाम कदा उनी तो नावा बेकार जुआन को नुआ कारबार रे सेलेद लागिद हय दुदेला आकात कुआ चलो एनखान आलेरेन रिपोर्टर जितेंद्र किस्को रिपोर्ट बन नेल लगे।
जतो को सगुन जोहार इन तुम जितेंद्र किस्को और आपे पेंगेलना संथाली खबर तिहिन मिनेना गोड्डा जिला रे पथरगामा क्षेत्र रे और नोंडे बड़ा चुबने जे गोड्डा जिला मुख्यालय खे तकरीबन नोंडे 20-25 किलोमीटर संगीन रे मिना गोड्डा मुख्यालय खे और तीन ओना जगह गे मिना और नोंडे पेंगेन दारे का नोआ बीर बुरु दारी नड़ी ते सजाव कान का नोआ गजाड़ और नोआ गजाड़ भितरी के मिट्टे कुटिया बनाव कना नोंडे मिट्टे ओड़ा बनाव कना बनिन दारे कना नोआ ओना दाग कदा को चेद का नोआ कुटिया भितरी रे नेल चुबना नोंडे मशरूम रा खेती यानी कि ऊट रा खेती हुयुगो कना और खेती कोई किसान कना उनिया नितुम दो कना कपिल राय और तिही उनिया चेद का आया इयते चेक मता आया हुनर ता आया जज्बात तिही नोआ ऊट रा खेती लगाव का दिला उनिया कथा तुन गारमाराव के उनी चेद मेन जोंदा और चेद लेका मेहनत कते तिही नोआ कामयाबी नाम कदा और नोआ कामयाबी नाम कते नोआ ऊट रा खेती कामयाबी नाम कते तिही उनी चेद लेका आत्मनिर्भर बनाव कना और आत्मनिर्भर बनाव कते आया रेन परिवार रेन जतो सदस्य असुले कोआ नोआ अडी मारंग कथा कना और नोआ इयते नुई कपिल राय मेन हो कना जे नुंडे ना ओका इन कमी का नोका गे तिना बेरोजगार मिना को उनको को नोआ को लगित कदम उठाव लेकान तको आकवा हुनर बनाव लगी कदम उठाव लेकान तको और नोका ना व्यवसाय चिकाय लेकान तको ओका दो आकवा घरों आकवा परिवार को चला बनाव देला उना वो नेल लगी और उना स्थिति चे कना चेक तैयार कदा उनिया बन गपाल मारा लगे चलिए और हो बाकी खबर लगे इन सुगे जोड़ा हुआ तहन पे और इन लगे तहन पे संथाली खबर। आप आज अपना जन्मोत्सव यहाँ पर पूरे परिजन अपने परिचित पदाधिकारी सब की उपस्थिति में आज मने कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और ये बहुत दिन से इंतज़ार था कुछ अच्छा करें और लोगों को दिखलाएं, लोगों का भी उत्साह बढ़े इससे मेरा कार्य देख के और लोग भी आत्मनिर्भर बने मेरे जैसे, यही सोच के साथ इस काम को किए और इसमें पिछले 4 साल से बहुत ही मेहनत किए हैं जो कि इस साल हम सफलता मशरूम का खेती वाकई में आप जो है लगातार जो है अपना जो ये मशरूम की खेती इसको लेकर के पूरे ज़िले में आपको अभी एक यहीं के वरिष्ठ पत्रकार से हमारी बातचीत हो रही थी, वो तो कह भी रहे थे कि ये मशरूम मैन इनको कहा जा सकता है और वाकई में ज़िले में मशरूम के प्रचलन को अगर प्रचलित करने वाला अगर कोई शख्स है तो ये अकेला इंसान है। लगातार ये आज भी इनका मेहनत जारी। अब ये बताइए अपने मेहनत के बारे में, अपने संघर्ष के बारे में बताइए कि कैसे आखिर ये प्रेरणा मिली मशरूम की खेती बाड़ी ये वो। सर ये खेती बाड़ी का सोच तो मेरा ये काम करने का नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा काम करने का था जो कि समाज को भी मेरे काम से लाभ मिले। मेरा सपना था कि मैं अपने गांव के लिए एक मिसाल बने और गांव का लोगों को रोजगार दें। हम सिलाई प्रशिक्षण भी दिए और हम ऑलराउंडर अभी तो मशरूम की खेती में आप तो पूरे और जिले में अपनी पहचान वहीं बना। से मेरा जाके ये सपना शुरू था और ये काम जब मिला तो इससे हम सोचे कि रोजगार दे भी सकते हैं, रोजगार प्राप्त भी कर सकते हैं। और ये हम 14 से लगे और 14, 15, 16 तक तो हम कुछ नहीं कर सके, लेकिन 16 में शशि भगत जी ओस्टर मशरूम का बीज ला के दिए और उससे जो मेरा दिन चालू हुआ तो ये हम आज तक मार्केट में मांग बटन मशरूम का होने लगा। बटन मशरूम मेरे पास था नहीं, ये कहाँ से मिलेगा कैसे मिलेगा पता करते करते मैं पहली बार कलकत्ता से मशरूम मंगाए 16-17 और उसको सेल कर। लंबी कहानी में हम नहीं जाएंगे, हम अभी ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो पूरा शेड वेड बना है अभी क्या स्थिति है? अभी ये बहुत अच्छा है। पहले घर में करते थे खेती, हम 3 साल तक मार खा चुके हैं, लेकिन यहाँ जब आए तो यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा मिला और यहाँ बहुत सक्सेस में हम गए हैं। अभी उत्पादन अच्छा हो रहा है। अच्छा चलिए हो तो हम रहा है। आपको दिखाएं कि यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल जंगली इलाका है। हमने आपको पहले ही बताया कि बिल्कुल यहाँ पीछे कई सारे बांस के पेड़ हैं और भी कई तरह के पेड़ हैं और उसके बीच ये पूरा जगह है जहाँ इनका मशरूम का ये शेड है। और कितना उत्पादन होता है? अभी सर ये 4 रोज टूटा है। पहला रोज 1, 2, 5, 10 इतना तक टूटा है और आज करीब 25। महीने का मुनाफा कितना? अभी कुछ नहीं बता सकेंगे, ये पहली बार मेरा खेती अभी शुरुआती है। हाँ शुरुआती है और इतना, लेकिन इसमें जितना बड़ा जगह है। अच्छा एक बात हम जानना चाहेंगे कि चलिए आपकी के बाद कई लोगों को शायद प्रेरणा मिले और लोग अपने स्तर पर पहल करें, सरकारी योजना का लाभ मिला है? हमको कुछ नहीं मिला है, ये चाह भी रहे हैं लेकिन बहुत जगह गए भी
पिछले साल अचार के लिए हम मशरूम का अचार भी बनाते हैं, जो कि अचार के लिए लोन लेने तो वहाँ बहुत सारा फिचांग ऐसे सब परेशानी आया जो कि हम छोड़ दिए, नहीं लिए। कभी लाभ नहीं मिला? कभी लाभ नहीं मिला। और लोन के कोई लिए जनप्रतिनिधि कोई लाभ दिलवाए कि नहीं? कोई नहीं, कोई किसी से हमको कोई लाभ नहीं मिला। बड़ा दिलचस्प ये पूरा वाकया है इनका, और इनको इस विषय को बड़ी गंभीरता से देखना, सुनना और जानना पड़ेगा कि देखिए कि एक कारगर शख्स जो अपनी मेहनत के दम पर इतना एक बड़ा एक मॉडल पूरा यहाँ पर प्रस्तुत करता है और सक्सेस है आज के दौर में, पूरा परिवार निर्भर है, पूरा परिवार निर्भर। लेकिन देखिए कि आज लगातार मेहनत के बावजूद इनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, जबकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार दावा कर रही है कि हम हुनरमंद लोगों को जो है आगे बढ़ाने के लिए उसको ऋण मुहैया करवाते हैं बैंकिंग के माध्यम से, लेकिन बैंक के माध्यम से आपको नहीं मिल पाया है और गए भी हैं। तो ये कहानी है झारखंड प्रदेश गोड्डा जिला। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझिए कि बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के क्षेत्र का है ये पथरगामा है। चलिए अब एक बार फिर से हम इनसे थोड़ा करीब से एक बार चीज़ों को देख लें, थोड़ा सा अंदर आइए, बताइए कि यहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या कर पहले तैयार करते हैं और उसके बाद उसमें बीज डालते हैं और हर बॉक्स में जो है यहाँ सैकड़ों की संख्या में इस तरह से इसको बटन मशरूम बोला। किस रेट में बिकता है ये? हम 250 रुपये किलो में 250 रुपया किलो में बिकता है। फायदा कितना होता है लगभग? ये हम कुछ चलिए फायदा बेरोजगार भाई एवं बहनों के लिए स्वरोजगार का सुनहरा अवसर। क्या आप बेरोजगार हैं? आइए निःशुल्क मशरूम का खेती का प्रशिक्षण।